آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے دہلی میں مرکزی وزراء سے کی ملاقات۔ تلنگانہ میں ایئرپورٹ کے اضافے سے متعلق مرکزی وزراء کو توجہ دلائی گئی۔ دستور میں کی جانے والی تبدیلی کے منصوبے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کانگریس رکن اسمبلی وویک وینکٹ سوامی نے یوم آئین کے موقع پر کیا خطاب۔ اڈانی کی کمپنی کے ساتھ 100 کروڑ کے معاملے کو واپس کرنے کے ڈرامے سے عوام مطمئن نہیں ہوگی۔ BRS ورکنگ پریزیڈنٹ KT راما راؤ کی ریاستی وزیر اعلیٰ پر تنقید۔ لنگر ہاؤس باپو گھاٹ کے علاقے میں زہریلی کیمیکل پھینکے جانے کا انکشاف۔ راجندر نگر پولیس نے کیس کیا درج۔ میر پیٹ پولیس اسٹیشن حدود میں سرقے کی واردات۔ اپارٹمنٹ کے فلیٹ سے 15 لاکھ روپے اور طلائی زیورات کا سرقہ۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اپنے دورے نئی دہلی میں منگل کے روز کافی مصروف رہتے ہوئے مرکزی وزراء رام موہن نائیڈو اور راجناتھ سنگھ سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مرکزی وزیر شہری ہوا بازی رام موہن نائیڈو سے تلنگانہ میں ایئرپورٹ کے اضافے اور توسیع سے متعلق تبادلہ خیال کرتے ہوئے ان سے ورنگل اور کولنگل میں ایئرپورٹ قائم کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ سے ملاقات کرتے ہوئے سینک اسکول سے متعلق مذاکرات بھی کیے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے نئی دہلی میں قومی کانگریس قائد پرینکا گاندھی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں وائناڈ پارلیمانی حلقے سے ضمنی انتخاب میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی اور پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا، جبکہ ان سے خواہش کی کہ وہ 9 دسمبر کو سونیا گاندھی کی سالگرہ کے موقع پر تلنگانہ کے سیکریٹریٹ کے پاس نصب کیے جانے والے تلنگانہ تلی مجسمے کی نقاب کشائی تقریب میں شرکت کریں۔ کانگریس رکن اسمبلی وویک وینکٹ سوامی اور کانگریس رکن خانساز کونسل MS پربھاکر نے ملک کے 75ویں یوم آئین کے موقع پر فلم نگر میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے مجسمے پر پھول مالائیں پیش کرنے کے بعد کانگریس رکن اسمبلی وویک وینکٹ سوامی نے بتایا کہ بابا صاحب امبیڈکر نے ہمارے ملک کے لیے جامع دستور کو مرتب کرتے ہوئے اس میں ہر طبقے کی ترقی کو ممکن بنایا، لیکن مرکز کی BJP حکومت اور وزیر اعظم نریندر مودی اس قانون کو تبدیل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں جس کو ملک کی عوام کبھی پورا ہونے نہیں دے گی۔ BRS ورکنگ پریزیڈنٹ KT راما راؤ نے پارٹی آفس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ملک بھر میں K چندر شیکھر راؤ وہ واحد وزیر اعلیٰ تھے جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں ریاست میں اڈانی کی جانب سے 20,000 میگا واٹ تھرمل پاور پلانٹ قائم کرنے کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا۔ KTR نے اڈانی کو بڑے بھائی کہنے والے ریونت ریڈی سے سوال کیا کہ وہ صرف اڈانی کی کمپنی کی جانب سے 100 کروڑ کی واپسی کا ڈرامہ کرنے سے عوام مطمئن نہیں ہوگی، بلکہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو اڈانی کی طرف سے 1000 سے زائد کروڑ کے جو معاملے
और माहदे किए गए हैं वो भी मनसूख करने होंगे। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला 28 मरतबा दिल्ली का दौरा कर चुके हैं और मरकज़ से 28 रुपये भी हासिल नहीं कर सके। ఆయన వైఖరి చూస్తూ ఉంటే ఆయన లేవనెత్తిన కొన్ని ప్రశ్నలు, కొన్ని అనుమానాలు, దానికి ఇవాళ మీడియాలో వచ్చిన విస్తృతమైన కవరేజ్ చూసిన తర్వాత మాట్లాడక తప్పని పరిస్థితి మాకు కలుగుతూ ఉంది. ఎట్లా ఉంది ఈరోజు అంటే నిజంగా చూస్తూ ఉంటే ఆయన ప్రెస్ మీట్ చూస్తే అసహనము, ఫ్రస్ట్రేషను, ఒక నిస్పృహ, అంటే నేను వెనక్కి తగ్గాల్సి వచ్చింది అనే ఒక ఈగోయిజము, రాహుల్ గాంధీతో తిట్లు పడ్డ తర్వాత, ఢిల్లీకి వెళ్ళి మొట్టికాయలు పడ్డ తర్వాత సహజంగానే ఉండే కోపం అవన్నీ వెలగెక్కి నన్ను కూడా పర్సనల్గా నానా బూతులు తిట్టినాడు. నాకైతే చూస్తే ఒకటే అనిపించింది, ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు 10-15 సంవత్సరాలుగా అందరికీ చెప్తా ఉండేటోడు ఎప్పటికైనా ముఖ్యమంత్రిని అవుతానని. మరి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కూడా ఇంత ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎందుకు? ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కూడా రోజు కేసీఆర్ని తిట్టుడెందుకు? ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కూడా రోజు మా మీద ఏడుపులు ఎందుకు? కావాల్సిన పదవి వచ్చింది, కావాల్సినంత దోపిడీ జరుగుతూనే ఉంది నీకు నిరాటంకంగా. మరి అట్లాంటప్పుడు ఇంత ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎందుకో నాకైతే అర్థం కావడం లేదు. నిన్న ఆయన వైఖరి చూస్తుంటే నాకైతే ఒకటే అనిపించింది, చిట్టినాయుడు గారికి చిప్పు దొబ్బింది అనిపించింది. ఎందుకంటే ఆయన మాటలు, ఆయన వైఖరి నిన్న అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నారో కూడా తెలియనంత ఒక ఏదో పిచ్చి రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేసినాడు నిన్న. ఇవన్నీ బీఆర్ఎస్ హయాంలో విడుదల చేసిన అదానికి ఇచ్చిన ప్రాజెక్టులు అంటాడు. అరే ఎంత మూర్ఖత్వం అంటే దీనికి నాకు ఏం చెప్పాలో కూడా అర్థం కావట్లేదు. ఎంత మూర్ఖత్వం అంటే ఇందులో నేషనల్ హైవే ప్రాజెక్టులు, జాతీయ రహదారుల ప్రాజెక్టులు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిందంటాడు. ఈయన మొన్నటిదాకా ఎంపీగా పనిచేసిండు. జాతీయ రహదారుల ప్రాజెక్టులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుందండి ఎక్కడన్నా? మరి గడ్కరీ గారు ఇక్కడ పనిచేస్తుండా, అక్కడ పనిచేస్తుండా? ఈయన మొన్నటిదాకా అక్కడున్నాడా, ఇక్కడున్నాడా? అసలు ఈరోజు ఎక్కడున్నాడు? మాకే అర్థం కావట్లేదు. అంటే ఇంత మూర్ఖంగా, ఇంత మొండిగా ప్రజల యొక్క తెలివితేటల్ని తక్కువ అంచనా వేసి నోటికొచ్చినట్టు వాగుతాను. మంత్రిత్వ శాఖ జాతీయ ఉపరితల రవాణా అంటే నేషనల్ సర్ఫేస్ ట్రాన్స్పోర్ట్, గడ్కరీ గారు మంత్రి. ఆయన డిపార్ట్మెంట్ టెండర్లు పిలిచి అందులో అదానికి దేశమంతా వర్క్లు వచ్చినాయి, ఈడొచ్చినాయి. అది మాకంట కడతానంటే ప్రజలు పిచ్చివాళ్ళు కాదు. ఇవాళ మా జర్నలిస్టు మిత్రులకు కూడా అన్నీ తెలుసు. ఏదో నువ్వు చెప్తున్నావు కాబట్టి వింటున్నారు, కానీ నిజానికైతే అప్పుడే ప్రశ్నించాలా మీరు కూడా, సార్ అవి జాతీయ రహదారులు కదా అని. అడగలేదు ఎవరు, కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా. రెండవది రక్షణ శాఖకు సంబంధించి అసలు మాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది. రక్షణ శాఖ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉంటుందండి? రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు ఏం చేస్తున్నారు మరిగా? రక్షణ శాఖ మంత్రి ఆయనకి ఎందుకు మరి? అంటే ఎంత మూర్ఖత్వం అంటే మాట్లాడితే కనీసం కొద్దిగా సోయి లేదు, ఏం లేదు. ఇంకోటి 700 रियासती वजीर टी नागेश्वर राव ने प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की डायमंड जुबली तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी किसानों की तरक्की के साथ उनके बच्चों को तालीम से आरास्ता करने और उन्हें असली सहूलतें फराहम करने के इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हाल ही में तेलंगाना की यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स के तकर्रात भी अमल में लाए। इस तकरीब से मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के सदूर नशीन कोदंडा रेड्डी और चिन्ना रेड्डी ने भी खिताब किया। बीआरएस सीनियर माइनॉरिटी कायद शेख अब्दुल्ला सोहेल ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मुखालिफ अक़लियत व मुस्लिम पॉलिसी पर तनक़ीद की और उनसे मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर महकमे अक़लियती बहबूद के वज़ीर की हैसियत से अपनी काबीना में मुस्लिम को शामिल करें। बीआरएस के सीनियर कायद शेख अब्दुल्ला सोहेल ने बताया कि जब से रियासत में तेलंगाना बरसर इक़्तिदार आई है तब से लेकर अब तक रियासत भर में 25 फ़िरक़ावाराना फ़सादात हो चुके हैं, जिसमें खुलेआम मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और रेवंत रेड्डी की हुकूमत में पुलिस तमाशा देखती रही।
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने आज दिल्ली में पार्टी की जनरल सेक्रेटरी और वायनाड लोकसभा हलके से कामयाब होने वाली प्रियंका गांधी से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि रेवंत रेड्डी दिल्ली में मौजूद हैं और पीर के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रेवंत रेड्डी ने कहा था कि वो स्पीकर ओम बिरला की दोख्तर की शादी में शिरकत के लिए दिल्ली जा रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने केटीआर के अडानी से मुताल्लिक़ कांग्रेस पर लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि हमने सिर्फ अतिया लिया था और हमने इसे वापस भी कर दिया है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि डाउस में जो बातचीत हुई थी वो रस्मी तौर पर थी और उस पर अमल नहीं हुआ है। रियासती कांग्रेस के सदर ने कहा कि जब किसी बात पर अमल ही ना हो तो इसे मनसूख करने की बात मुनासिब नहीं है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि बीआरएस पार्टी का लोकसभा इंतखाबात में सफाया हो चुका है, इसलिए वो बौखला गई है और अपने वजूद का एहसास दिलाने के लिए रोज़ बयानबाजी कर रही है। आइंदा इंतखाबात में बीआरएस पार्टी का नामो निशान नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि मसावी हुकूक आइन का अहम पहलू है। बीजेपी आइन के उसूलों को पामाल करते हुए अपनी पॉलिसियों और एजेंडे के मुताबिक हुकूमत करना चाहती है। राहुल गांधी आइनी पॉलिसियों को लागू करना चाहते हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से ऑपरेशन रोप के तहत टोली चौकी शेखपेट में कार्रवाई की गई, जिसके तहत फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जा करते हुए कारोबार करने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई और तकरीबन 2 किलोमीटर तक ये कार्रवाई अंजाम दी गई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने बजाते खुद इस ऑपरेशन रोप की निगरानी की और गैर कानूनी तौर पर कब्जा करते हुए फुटपाथ पर कारोबार करने वाले लोगों को खाली करवाया गया। बादौना कमिश्नर पुलिस ने कहा कि ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है और इसके लिए मुतालिका रुकन असम्बली को भी मुकम्मल ताउन करने की ज़रूरत है। नज़रअंदाज नहीं करते हुए इसके बारे में ट्रैफिक मैनेजमेंट इसको कैसे अच्छे से करें, इसके बारे में हम ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से बहुत डिस्कशन किए हैं। हम सबको बताना चाहते हैं कि आज ये 3 कमिश्नरेट जो का एरिया है करीब 7,500 किलोमीटर का जो रेडियस है, वहाँ पर 88 लाख व्हीकल्स अभी आ गए हैं रोड पर और एक दिन में 1500 व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन हो रहा है आरटीए ऑफिसेस में। तो आप सोच सकते हैं कि कितने नए व्हीकल्स रोड पर आ रहे हैं और ट्रैफिक का मसला जो है कितना खराब होता जा रहा है। तो इसमें 2-3 बात हम समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो रोड है वो कैरेज वे बोलते हैं। अगर रोड ये ज़्यादा व्हीकल्स आ गए उसके बाद रोड का एरिया जो है अगर कम होता जाएगा बिकॉज ऑफ एनक्रोचमेंट्स, हम देख रहे हैं कि दुकानदार जो हैं उनके दुकान के आगे छोटे छोटे शेड्स का परमिशन दे रहे हैं और फुटपाथ एनक्रोच करने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
आगे आगे आ रहे हैं रोज बर रोज। इसके अलावा जो भी फुटपाथ हैं उस पर कपड़े बेचने के दुकान, छोटे छोटे ये दूसरे मंडियां जो होते हैं वो लगाना, उससे क्या हो रहा है कि लोग जो फुटपाथ पे चलना है उनको रोड पर चलना पड़ रहा है, और जो रोड पर जो गाड़ियां जाना है या बसेस को जो रुकना है बस स्टॉप पर, वो पूरे एंक्रोच हो चुके हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो कैरेज वे है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो इसीलिए जो ऑपरेशन रोप हमने टेकअप किया है, ऑपरेशन रोप का मतलब क्या है? रोप का मतलब ये है कि रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग एंड एनक्रोचमेंट्स। तो हमारे अफसरान जो है ट्रैफिक पुलिस में हर रोज हम अपने क्रेन्स के साथ और अपने जो मोबाइल्स है या जो भी उनके पास साधन है वो सब लेकर अपने एरियाज में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का दायरा जो है उसमें वो घूमते रहेंगे, और फुटपाथ के जो एनक्रोचमेंट्स हैं जिसकी वजह से रोड पर पार्किंग हो रही है, ये एनक्रोचमेंट्स आने के बाद क्या होता है, दुकानें आ जाती हैं, उसमें खरीदारी करने के लिए लोग अपने गाड़ियां रोड पर रोकते हैं। रोड पर रोकने से ये जो कैरेज वे है, जो रोड का स्पेस है, वो और कम होता जा रहा है। तो इसकी वजह से हमको ये एनक्रोचमेंट्स को थोड़ा निकालना पड़ेगा, और ऑपरेशन रोप के जरिए हम ये सब निकालने की कोशिश आज से शुरू किए हैं। करीब एक हफ्ते से ये ऑपरेशन रोप बहुत इंटेंसिवली हैदराबाद सिटी में हो रहा है। आज मैं अपने एडिशनल सीपी ट्रैफिक और डीसीपी ट्रैफिक और दूसरे ट्रैफिक के अफसरान जो हैं सभी के साथ मिलकर यहाँ पर आया हूँ, और इसको टोली चौकी एरिया में जो मेन एक ट्रैफिक कॉरिडोर, हाई डेंसिटी कॉरिडोर है, जो साइबराबाद, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट का ट्रैफिक जो सुबह उधर जाता है, शाम में इधर आता है, ये वन ऑफ द हाई डेंसिटी ट्रैफिक कॉरिडोर्स है। पर यहाँ पर ट्रैफिक जैम्स इतने हो रहे हैं कि पब्लिक बहुत बेजार हो गया है। पब्लिक कंप्लेन कर रहा है, आवाम से इतने कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि हमको ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कुछ करना है। तो इसीलिए आज हम भी इसमें हिस्सा लेकर यहाँ जो भी एनक्रोचमेंट्स है उसको निकाल कर और इसको कैरेज वे को और बढ़ाने की कोशिश की है। और मैं अपने ट्रैफिक ऑफिसर्स को ये भी बताया हूँ कि जो आरटीसी बसेस हैं उनको बस बेस में जाने के लिए बस स्टॉप। तेलंगाना हाईकोर्ट ने लागा चिल्ला वाक़े को लेकर पुलिस की कार्रवाई की सरजनिश की है। हाईकोर्ट की मोअज़्ज़िज़ बेंच ने आज इस केस में समाअत करते हुए पुलिस से सवाल किया कि पी नरेंद्र रेड्डी के खिलाफ आखिर किस कानून के तहत 3 FIR दर्ज की गई हैं। अदालत ने सवाल किया कि क्या DSP और तहसीलदार अपने तौर पर शिकायत तहरीर नहीं कर सकते थे। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि जिस किसी ने शिकायत तहरीर की है इससे सिर्फ DSP RDO के दस्तखत लिए हैं। अदालत ने यह तंज़ किया कि नकल मारने के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। जिनमिटला के सनती इलाके में वाक़े बैग फैक्ट्री में आग लगने का वाक़या पेश आया है। आग के शोलों और धुएं के फैलने से सनसनी देखी गई। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़े पर पहुंच गया, ताहम किसी भी तरह के कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आग लगने की वजह का भी पता नहीं चल पाया। मुकामी अवाम की तरफ से गुंजान आबादी वाले इलाके में फैक्ट्रियों और कारखानों के क़याम को लेकर बरहमी ज़ाहिर की जा रही है। रच्चाकुंडा मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद की प्रशांत हिल्स में सरक़े की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक सारिक पंगली अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 101 में दाखिल हुई और घर से 15 लाख रुपए की नकद रकम के अलावा 12 तोले के तिलाई ज़ेवरात का भी सरखा कर लिया। सरखे की ये वारदात उस वक्त अंजाम दी गई जब घर के मकीन तकरीब में गए हुए थे। घर लौटने पर उन्हें सरखे का पता चला। फौरी पुलिस को इत्तला दी गई, पुलिस टीम को भी तलब किया गया। मीरपेट पुलिस ने इस केस दर्ज कर लिया है और सिलसिले में तहक़ीक़ात जारी है।
لنگر ہاؤس باپو گھاٹ کے علاقے میں موسیٰ ندی میں زہریلے کیمیکل کو پھینکے جانے کا پردہ فاش ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق لاری میں لا کر کیمیکلز کے فضلے کو پھینکا جا رہا تھا۔ مقامی عوام نے لاری کو روک دیا۔ عینی شاہدین کے مطابق لاری میں مہلک کیمیکلز کا فضلہ بھرا ہوا تھا۔ فوری لاری کو مقامی عوام نے گھیر لیا لیکن ڈرائیور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی راجندر نگر پولیس بھی مقام واقعے پر پہنچ گئی۔ اس سلسلے میں کیس بھی درج کر لیا گیا۔ واضح رہے کہ حکومت کی طرف سے موسیٰ ندی کو پھر سے زندہ کرنے کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن موسی ریور سے لگے کئی مقامات پر گندگی پھینکی جا رہی ہے۔ پہلے اس سرگرمیوں کو روکنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں دیکھیں گے سرخیاں ایک بار پھر۔ ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے دہلی میں مرکزی وزراء سے کی ملاقات۔ تلنگانہ میں ایئرپورٹ کے اضافے سے متعلق مرکزی وزراء کو توجہ دلائی گئی۔ دستور میں کی جانے والی تبدیلی کے منصوبے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کانگریس رکن اسمبلی وویک وینکٹ سوامی نے یوم آئین کے موقع پر کیا خطاب۔ اڈانی کی کمپنی کے ساتھ 100 کروڑ کے معاملے کو واپس کرنے کے ڈرامے سے عوام مطمئن نہیں ہوگی۔ BRS ورکنگ پریزیڈنٹ KT راما راؤ کی ریاستی وزیر اعلیٰ پر تنقید۔ لنگر ہاؤس باپو گھاٹ کے علاقے میں زہریلی کیمیکل پھینکے جانے کا انکشاف۔ راجندر نگر پولیس نے کیس کیا درج۔ میر پیٹ پولیس اسٹیشن حدود میں سرقے کی واردات۔ اپارٹمنٹ کے فلیٹ سے 15 لاکھ روپے اور طلائی زیورات کا سرقہ۔ اسی کے ساتھ روبی اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔